Start with the buoyancy and elasticity. Buoyancy versus elasticity. Remember, for objective type questions, everything is important. For example, they just give this one line phrase or one line sentence related to buoyancy, and then you will be given the four, these options. Among those four options, one option will be related to buoyancy, one will be related to elasticity. The two of the options would be, somewhere not related to either of these two terms. Fine. So there you need to just pick the odd one out, that which one is actually defining the buoyancy and which one is related to the elasticity. Fine. Chalo. So what exactly is the buoyancy and elasticity? Anybody, Ankita, any idea? Any idea? No. What is tax elasticity? Elasticity in general sense change or responsiveness of one variable with respect to another. But what exactly is the elasticity of taxation? The proportionate change in tax revenue due to proportionate change in the tax rate. Okay. Yes. So buoyancy and elasticity का basic difference की हम बात करें, सीधा अगर मैं yes. So it is basically an increase in tax revenue on account of increase in GDP. So buoyancy is percentage increase in tax revenue or proportionate increase in tax revenue with respect to percentage change in GDP. That is buoyancy. How tax revenue is buoyant with respect to the growth in the economy. Fine. Tax rate wala is elasticity. Tax base is different thing. I will be coming to that. Tax coverage or rate is related to elasticity. Coverage is basically the base. Fine. The tax will be buoyant if the 1% change in the GDP will lead to more than 1% increase in the Yes. What he is saying is, ideally in any economy, the percentage change in or proportionate change in your tax revenue, fine, with respect to percentage change in GDP should be greater than unity. Fine. What does it mean? What does it mean? Numerator should be greater than. Yes. If there is 1% change in GDP, suppose your economy is growing by from 6% growth, now it's growing by 7%. Fine. That is 1% growth, change in growth rate. Fine. So this 1% of change in growth rate, that there should be change in tax revenue by more than unity. I mean, if your GDP is increasing by 1%, fine, I'm talking about in comparative terms the growth rate, then your tax revenue should increase by either 1.1% or 1.2% or 1.5% or 2%, means more than. This is the ideal condition, that is, you can say desirable condition, rather not the ideal but desirable condition for any economy, that your tax rate should be greater than unity. Always remember this thing. Then the next concept is related to elasticity. So what exactly is the elasticity now? Again, it's a change in your, or percentage change, whatever you want to say, tax revenue, fine, with respect to change in your either tax rate or coverage or base. Coverage and base one and same thing. Fine. Coverage is what? Basically defining the base. Fine. So tax base थोड़ा सा explain करो. Okay. Tax base is like, सपोज अगर आप लोगों ने अभी देखा होगा कि जैसे गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो इनकम टैक्स स्लैब्स है उसको चेंज कर दिया, राइट? अर्लियर टैक्स एग्जेम्पशन वाज गिवन अप टू द इनकम ऑफ 5 लाख, नाउ इट इज अप टू 7 लाख, राइट? सो अगर तो इसमें क्या हुआ कि सपोज टैक्स बेस जो है उसको क्या किया, पहले 5 लाख तक सपोज था, उसमें क्या था कि बहुत सारे लोग, आपको पता ही है, उनकी इनकम 7 लाख होती है, 8 लाख होती है, बट फिर भी दे यूज टू शो 4.5 लाख और 5 लाख इन ऑर्डर टू evade the tax or avoid the tax, rather not evade I would say, but avoid the tax, that is legal in nature. नाउ इसको बढ़ा के सपोज 7 लाख कर दिया, ठीक है, मींस आपकी जो सेविंग की या एग्जेम्पशन की लिमिट है वो 2 लाख से बढ़ा दिया,
सपोज सो जो लोग सपोज 7 लाख पे या 10 लाख पे 5 लाख दिखाते थे, वो नाउ दे वुड कम अंडर दिस ब्रैकेट, फाइन, एंड हो सकता है दे वुड बी प्रॉम्प्टेड टू फाइल देयर ITR, ठीक है। दिस इज वन थिंग, दिस इज अ सिंपल थिंग which doesn't looks to be more impactful. I am giving another example, but एक ये है कि आपने कवरेज देखो किसी भी चीज का सिंपल डिमांड सप्लाई का क्या मतलब, सपोज दो शॉप्स हैं, ठीक है, कोई प्रोडक्ट सेल कर रही है, सपोज मोबाइल फोन, ठीक है, ठीक है। सो दो तरीके से प्रॉफिट कमाने का मोर ऑफ सेल्स रेवेन्यू बढ़ाने का या सेल बढ़ाने के दो आपके रूट्स होते हैं, क्या क्या। पहला क्या हो सकता है कि आपने प्राइस इंक्रीज करने से बढ़ेगा कि डिक्रीज करने से, यस, प्राइस आपने कम कर दी, ठीक है, तो आपके पास जो लॉट है, जो आपको डिमांड है वो बढ़ जाएगी। पहले सपोज आपका मोबाइल फोन एक दिन में सपोज 10 सेल्स होते थे, ठीक है, नाउ अगर हो सकता है कि ये क्वांटिटी बढ़ के 12 होगी पर डे सेल, इज इट पॉसिबल। सपोज आपने 1000 रुपए से प्राइस कम कर दिया लेटेस्ट से, फाइन, तो पहले सपोज आपके 10 फोन बिकते थे, अब आपके 12 बिक रहे हैं। इससे क्या हुआ अल्टीमेटली, सी इसको और मैं बताता हूं थोड़ा और डिटेल में। सपोज 10 फोन की जगह 12 बिक रहे हैं, ठीक है, ये इसलिए बिक रहे हैं क्योंकि आपने प्राइस 1000 से कम कर दिया। लेट अस से कि पहले 10 फोन के जो प्राइस थे वो 20,000 थे, सो आपकी इनकम कितनी थी 2 लाख, फाइन, बट नाउ से कि 1000 से आपने कम कर दी और आप 12 फोन बेच रहे हो एट 12 बेच रहे हो एट प्राइस, लेटर से 1000 कम कर दी तो कितना हो गया ये 19,000, फाइन, तो अब कितना बनता है टोटल, हाउ मच, 2 लाख 28 190 एंड 88, यस, ठीक है, 28, फाइन, सो दिस इज दिस मच। So you see the difference दिखा कैसे, वो ऐसे कि सपोज आपने प्राइस कम करके आपने बेस बढ़ा दिया, डिमांड बेस जो है मार्केट में, ठीक है। पहले सपोज आपसे लोग कितने 10 फोन बेचते थे, सपोज डिमांड 10 की थी, अब 12 की है, बट ये प्राइस कम करने की वजह से डिमांड बढ़ी ना, समझ रहे हो। तो इससे क्या हुआ कि नेट रेवेन्यू जो सेल हो रही है, सेल्स मैक्सिमाइजेशन कह लो या रेवेन्यू जनरेशन है, वो 28,000 से आपकी बढ़ गई, स्टिल व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग 1000 डिस्काउंट्स, व्हाई सो, बिकॉज 2 यूनिट आपकी मोर सेल हो रही है। दिस इज वन ऑफ द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और द प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, हाउ यू सेल द थिंग्स। इन सिमिलर इंस्टेंस वी कैन से दैट व्हेन गवर्नमेंट इज, सपोज अर्लियर टैक्स रेट 10% था, फाइन, now the government has reduced it to 5% for, let us say, those who are whose income is falling in the brackets of, let us say, 0 to 8 lakhs, means 0 to 7 is exempted, means 1 lakh जो है उस पे 5% let us say, fine। earlier it was 10%, इतना नहीं होता, 5% ही होता है फर्स्ट ब्रैकेट के लिए, but let us for understanding purpose we are assuming this much, सो 5% है, मीन्स 10 से 5% कर दिया, ठीक है। बट हुआ क्या कि पहले यहाँ पे हो सकता था कि लोग एडजस्टमेंट करा के दिखा देते कि हमारी इनकम इससे कम है, ठीक है, बट अब हो सकता है कि वो एडजस्टमेंट ना कराएं, ठीक है। यहाँ टैक्स रेट घटाने से क्या होगा कि जो पहले नेट इस इनकम ब्रैकेट में आते थे, ठीक है, 10% पे, अब 5% करने की वजह से ज़्यादा लोग आ जाएंगे इस ब्रैकेट में, समझ रहे हो, क्योंकि पहले सिर्फ 10% लगता था जिनकी इनकम इतनी थी, ठीक है, बट अब 5 कर दिया, तो अब वो लोग भी आ जाएंगे इसमें जिनकी इनकम 10 लाख तक है, क्योंकि फिर स्लैब हो सकता है कि 10 से 15 का चेंज हो रहा हो। हाँ, सो समझ रहे हो क्या रहा है कि आपकी जो टैक्स बेस है या कवरेज है, जैसे हमने मोबाइल फोन वाला एग्जांपल देखा, बाय 2 यूनिट बढ़ गई, वैसे ही टैक्स नेट में जो लोग आ रहे हैं आपके, वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो गए। गेटिंग दैट? तो हो सकता है कि गवर्नमेंट को वैसे ही जैसे मोबाइल फोन वाला देखा कि हो सकता है कि 1% या 2% टैक्स डिक्रीज करके गवर्नमेंट की रेवेन्यू में 100 रुपए का नुकसान हो रहा हो सपोज, ठीक है, बट हो सकता है कि टैक्स नेट बेस बढ़ने से, सपोज पहले 1 लाख लोग पे करते थे इनकम टैक्स, अब 1.10 लाख पे कर रहे हैं,
ठीक है। सो अगेन नेट इफेक्ट देखोगे तो ये वाला ज़्यादा होगा क्योंकि आपका बेस यहाँ कवरेज बढ़ रहा है, 10 लाख लोग ज़्यादा पे कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ ITR फाइल कर रहे हैं, ठीक है। सो इस तरह से बेस चेंज करके ज़्यादा लोग आपके टैक्स ब्रैकेट में आ जाएंगे या टैक्स रेट कम करके, गेटिंग दैट। सो इसलिए दिस इज इलास्टिसिटी, दैट इज चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर, नो बेस, कवरेज और रेट।